بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے وصیت کرنے کی تاکید کرنا اور جو وصیت درست نہیں ہے اس کا بیان۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے کتاب الوصایا۔ وصایا جمع ہے وصیت کی، جیسے کہ ہدایہ ہدیہ کی جمع ہے۔ اب وصیت کا استعمال مصدری معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وصیت کرنا، اور مایوسا بھی یعنی جس چیز کی وصیت کی جائے، دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب وصیت کیا ہے یہ سمجھیے۔ وصیت اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو، یعنی اس کام پر عمل زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص یا فلاں دینی ادارے، مسافر خانے یا یتیم خانے کو دے دی جائے، تو یہ وصیت کہلاتی ہے۔ اب وصیت کو دو گواہوں کی موجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں وصیت کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ قانون میراث کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں حصہ نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ مدد کے مستحق ہیں، مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت زدہ ہے، یا کوئی بھائی یا بہن یا کوئی دوسرا عزیز سہارے کا محتاج ہے، تو وصیت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے۔ وصیت کرنا اور نہ کرنا دونوں اگرچہ جائز ہیں، لیکن بعض اوقات وصیت کرنا افضل اور بہتر ہے۔ 1/3 جائیداد میں وصیت کا نافذ کرنا وارثوں پر واجب ہے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی حدیث کی عبارت پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی ما یؤمر بہ من الوصیۃ، یعنی وصیت کرنے کی تاکید کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز موجود ہو اور وہ پھر بھی 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین الا وصیته مکتوبۃ عنده۔ تو یہاں پر اہل ظواہر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وصیت جو ہے وہ مطلقاً ای فی کل مال واجب ہے، اور عند جمہور جس شخص کے ذمے قرض یا حقوق العباد ہوں اس پر وصیت واجب ہے، لیکن اس کا لکھا ہونا اور اس میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ یہاں پر ہم ائمہ کے دلائل دیکھ لیتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اس پر قرض یا دوسرے کا کوئی اور حق ہو اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں اس حق جو اس پر حق واجب ہے اس کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں جمہور کے نزدیک بھی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اصحاب ظواہر کی دلیل جو ہے وہ اپنی قرآن پاک سے استدلال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تو اس آیت سے وصیت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کتبہ فریضہ اور وجیبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے سال اپنے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کو کوئی وصیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اصحاب ظواہر کی دلیل کا جواب یہ ہے
کہ आयत में वसीयत जिससे असहाबे ज़वाहिर ने इस्तिदलाल किया है वो आयत मीरास से मनसूख है। इसलिए इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि यानी आयत वसीयत को आयत मीरास ने मनसूख कर दिया और हमारी मुस्तदल हदीस भी नस की तायद करती है। खुलासा कलाम ये है कि अगर किसी शख्स की कर्ज की अदायगी के बाद इसकी जायदाद बच जाती है तो फिर इसके लिए ये है कि वसीयत नाफिज करना वारिसीन के लिए जरूरी है। 1/3 से ज्यादा वसीयत नाफिज करने और ना करने में वारिसीन को इख्तियार है। किसी वारिस या तमाम वारिसीन को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो ये गुनाह कबीरा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वारिस को मीरास से महरूम किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जन्नत से महरूम रखेगा। इंतकाल के बाद अगर तरका या जायदाद या रकम की तकसीम सिर्फ और सिर्फ विरासत के कानून के एतबार से होगी। इब्तदा इस्लाम में जब तक मीरास के हिस्से मुकर्रर नहीं हुए थे हर शख्स पर लाजिम था कि अपने वारिसों के हिस्से बजरिया वसीयत मुकर्रर करे ताकि इनके मरने के बाद ना तो खानदान में झगड़े हों और ना किसी हकदार का हक मारा जाए। लेकिन जब बाद में तकसीम विरासत के लिए अल्लाह ताला ने खुद उसूल और जवाबित बना दिए जिनका जिक्र सूरत निसा में है तो फिर वसीयत का वजूब खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता 2 बुनियादी शराइत के साथ इसका मुस्तहब होना बाकी रहा, यानी जो शख्स विरासत में मुतय्यन हिस्सा पा रहा है इसके लिए वसीयत नहीं की जा सकती। मसलन माँ, बाप, बीवी, शोहर और औलाद, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर तकरीबन 1.5 लाख सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मजमे के सामने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया, इसलिए अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में मजीद वजाहत मौजूद है कि मीरास ने इन लोगों की वसीयत को मनसूख कर दिया जिनका मीरास में हिस्सा मुकर्रर है। दूसरे रिश्तेदार जिनका मीरास में हिस्सा नहीं है उनके लिए हुक्म वसीयत अब भी बाकी है। वसीयत का निफाज ज्यादा से ज्यादा तरके के 1/3 हिस्से पर नाफिज हो सकता है और ये कि तमाम वुरसा पूरी वसीयत के निफाज पर राजी हों। उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि जिन रिश्तेदारों का मीरास में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है इनके लिए वसीयत करना अब फर्ज और लाजिम नहीं है क्योंकि वसीयत की फर्जियत का हुक्म मनसूख हो गया है। इसी तरह वसीयत की अकसाम अल्लामा शामी के नजदीक ये है, वो 4 अकसाम बताते हैं इसकी। वो फरमाते हैं कि वाजिब फराइज वाजिबात में से जिन चीजों को अदा ना कर सका हो इनकी वसीयत करना इस पर वाजिब है। मसलन ज़कात अदा नहीं की या हज नहीं किया तो इसके मुतालिक वसीयत करे, या इसने नमाजें और रोजे छोड़ दिए थे और इनकी कज़ा नहीं की थी इनके बारे में वसीयत करे, या माली कफारा अदा नहीं किया था इसकी वसीयत करे। इसी तरह बंदों के हुकूक यानी हुकूकुल इबाद जो अदा नहीं कर सका इनके मुतालिक वसीयत करे। मसलन किसी का कर्ज देना है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, किसी की अमानत देनी है, या किसी की कोई चीज छीन ली थी इसको वापस करना है, इस किस्म की वसीयत करना वाजिब है। दूसरा वो बताते हैं कि मदरसों, मसाजिद और उलमाए किराम, दीनी तुलबा और गरीब कराबतदारों और दिगरे उमूर जो खैर के काम है उनमें खर्च करने की वसीयत करना ये मुस्तहब है। और तीसरा ये बताते हैं कि अपने रिश्तेदारों में से अमीरों के लिए वसीयत करना ये मुबाह है। और चौथा बताते हैं कि फासिक फाजिर लोगों के लिए वसीयत करना मकरूह है। अब अगली हदीस देखिए। वबी क़ाल हद्दसना मुसद्दद व मुहम्मद इब्न अल-अलाई क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अनिल अक़मशी अन अबी वाइल अन मसरूक अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनारन वला दिरहमन वला बईरन वला शातन वला औसा बिशैइन। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दिरहम और दीनार छोड़े और न ऊंट और बकरियां और न ही किसी चीज यानी माल और खिलाफत की वसीयत फरमाई। तो देखिए, वला औसा बिशैइन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज की वसीयत नहीं की यानी माल या खिलाफत के बारे में, लेकिन किताबुल्लाह के बारे में
और अपने अहले बैत के बारे में और इखराजुल यहूद मिन जजीरतुल अरब वगैरह, इन उमूर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन वसीयत फरमाई। जैसा कि अहादीस में भी है, इस हदीस में बईर और शातुन की भी नफी है। इसके बारे में मुल्ला अली कारी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो अहादीस की किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में, यानी आपके मुल्क में बहुत से ऊंट थे और 20 ऊँटनियां थी दूध देने वाली। इसी तरह इर्द गिर्द यानी नवाही मदीने में और 7 बकरियां भी थी। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी। तो इसी तरह अहले सीरत की ये रिवायत इस हदीस यानी सही के, ये जो हदीस है इस सही हदीस के मुआरिज नहीं हो सकती, यानी इनका तारुज नहीं हो सकता। फला युतबिरु, और आगे फरमाते हैं कि अगर सही भी मान लिया जाए तो इसको इस पर महमूल किया जाएगा कि वो ऊंट सदके के थे, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट थे वो सदके के थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुफा और फुकरा सहाबा किराम के लिए छोड़ा था। और इनके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज जमीनें थी, यानी खैबर और फिदक में, तो इनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका ही में मुसलमानों की जरूरियात के लिए वक्फ कर दिया था और सदका कर दिया था। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी को वारिस नहीं बनाते, जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क में अगर कोई चीज थी तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सदका है। तो इस हदीस बाब में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल बिल्कुल बरहक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत जाती माल और दौलत में नहीं थी, बल्कि किताब और सुन्नत यानी दीन और तकवा और खौफ खुदा की थी। इसी तरह देखिए उलमाए किराम को जो अंबिया का वारिस कहा गया तो वो इल्म की बुनियाद पर कहा गया कि इल्म के लिहाज से वो अंबिया के वारिस हैं, माल के लिहाज से नहीं कहा गया विरासत का। ठीक है, अगला बाब देखिए, बाबू मा जाअ फी मा ला यजूज़ु लिलमुसी फी मालिही, यानी कि जो वसीयत दुरुस्त नहीं उसका बयान। हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबता व इब्न अबी खलफ़ क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन ज़ुहरी अन आमिर इब्न सअद अन अबीही क़ाल मरिज़ा मग़ज़न क़ाल इब्न अबी खलफ़ बिमक्कता सुम्मा इत्तफ़क़ा अशफ़ा फ़ीही फ़अादहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि इन्ना ली मालन कसीरन वलैसा यरिसूनी इल्ला इब्नती अफ़अतसद्दक़ु बिस्सुलुसैनि क़ाल ला क़ाल फ़बिश्शर्ति क़ाल ला क़ाल फ़बिस्सुलुसि क़ाल अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन इन्नका अन तत्रुका वरसतका अग़नियाअ ख़ैरुन मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नासा व इन्नका लन तुनफ़िक़ा नफ़क़तन इल्ला उजिरता बिहा हत्ता लुक़मतु तरफ़उहा इला फ़िम्रअतिकी क़ुल्तु या रसूलल्लाहि अतख़ल्लफ़ु अन हिजरती क़ाल इन्नका इन तुख़ल्लफ़ बअदी फ़तअमल अमलन सालिहन तुरीदु बिही वजहल्लाहि ला तज़दादु बिही इल्ला रिफ़अतन व दरजतन लअल्लका अन तुख़ल्लफ़ हत्ता यंतफ़िअ बिका अक़वामुन व युज़र्र बिका आख़रून सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अमज़ी लिअस्हाबी हिजरतहुम वला तरुद्दहुम अला अक़ाबिहिम लाकिनिल बाइसु सअद इब्न क़ौलता यरसी लहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन माता बिमक्का। हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा वो सख्त बीमार पड़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरे वारिसों में सिर्फ एक बेटी है, तो क्या मैं अपना 2/3 माल अल्लाह की राह में सदका कर दूं? फरमाया नहीं। फिर पूछा, क्या 1/3 माल सदका कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, 1/3 माल सदका कर सकते हो और तिहाई भी बहुत है। इसी तरह फरमाया, तेरे लिए अपने बाद और अपने वारिसों को मुफलिस और मुहताज बनाकर छोड़ जाने से बेहतर है कि तू इनको खुशहाल छोड़कर जाए और तू जो चीज भी रज़ाए इलाही की खातिर
सर्फ करेगा तुझे इसका अजर जरूर मिलेगा, यहाँ तक कि अगर तू अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से लुकमा देगा इसका भी तुझे सवाब मिलेगा। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीमारी की बिना पर क्या हिजरत में भी पीछे रह जाऊंगा, यानी मैं इसके सवाब से भी महरूम रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू हिजरत से रह जाएगा तो क्या हुआ, खुशनुदी रब की खातिर काम करते रहना, यही तेरी तरक्की और दराजात का सबब बन जाएगा। और शायद तू जिंदा रहे यहाँ तक कि कोई कौम तुझसे फायदा उठाए और कुछ दूसरे लोग नुकसान उठाएं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरे असहाब की हिजरत पूरी फरमा और तू इनको उल्टे पांव मत फेर। लेकिन काबिल अफसोस हाल तो साद का है। बेचारे साद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते थे कि इनकी मौत मक्का में आई। देखिए यहाँ पर फरमाया, लईसा यरिसूनी इल्ला इब्नती, यानी असहाबे फरूज में सिवाय बेटी के और कुछ नहीं था, न असबात और न ज़वील अरहाम। तो इस वजह से उन्होंने ये फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मुझे कितने हिस्से की जो है वसीयत करनी चाहिए। आगे फरमाया, कुल्तु या रसूल अल्लाह अतखल्लफु अन हिजरती, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शायद हिजरत के सवाब से पीछे रह जाऊं कि मुझे मक्का में मौत आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू मेरे बाद बाकी और जिंदा रहेगा। ये हदीस मौजज़ात और अलामात नबूवत में से है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 40 साल जिंदा रहे। इसी तरह फाते ईरान बने, बहुत सी फतुहात में आपने हिस्सा लिया। और उलमाए किराम का इसमें इख्तिलाफ है कि अगर मुहाजिर की मौत मक्का में वाक़े हो तो बाज लोग कहते हैं अगर ऐसा इसके इख्तियार से हुआ तब इसका अजर जो है यानी अजर हिजरत का खत्म हो जाता है, वरना नहीं। और बाज ने कहा यहबितु मुतलकन है। आगे फिर फरमाया, लाकिनिल बाइसु सअद इब्न खौलहु, यानी कि काबिल अफसोस हाल तो साद का है। बेचारे साद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते थे कि इनकी मौत हिज्जतुल विदा में मक्का में आई। बासा का माना है नुकसान उठाने वाला। इसी तरह आगे फरमाया, यरसी लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ पर यरसी मरसिया से माखूज है जिसका इस्तेमाल मैयत में होता है, यानी मुहासन मैयत का जिक्र करना, मैयत की तारीफ करना और मैयत के अच्छे अखलाक और मुहासिन का जिक्र करना। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।